In India as a whole, socio-economic condition is really poor. Therefore, it's difficult to support and give employment to every citizens of India. As per UNICEF report, 17 million child workers, about 12% in India, aged 5 to 14, are engaged in rag pickings. Our feet are dusty because of what we do today, throwing the waste here and there. We ever wonder where the daily waste goes, but never give attention to those poor people working for it. Big cities like Delhi, we can see around large areas of dumped waste where little children are seen working in the garbage. We often see the children coming and picking the waste from public places and sometimes off the road. The rag pickers are often street dwellers. They have no source of income of their own. Rag picking is their only income, which seems to be their best pastime. With whole day of struggling, hardly they earn 100 to 200 rupees. We can see such people wearing dirty torn clothes, walking in search of plastic bottles, metals and etc. But we never have the concern to ask and pity them. They are involved in recycling activities and they sell to the scrap dealer to get some money. और ये काम तुम कितना बजे से शुरू करते हो? वो नाइट में भी करता है आदमी सब, कोई सुबह से 6 बजे से 5 बजे तक करता है, फिर नाइट में करता है। अच्छा अच्छा। मेहनत नहीं करेगा तो कौन खिलाएगा? कोई तो नहीं है यार, मेहनत करेगा फिर तो खाएगा। जैसे आपको और इससे भी अच्छा काम मिलेगा तो यही काम करोगे कि दूसरा काम करना? इससे भी बढ़िया काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे। ये तो गंदा काम है, जो भी क्या करेंगे, पेट तो सुनता नहीं है ना। गंदा काम हो चाहे कुछ भी हो, पेट तो सुनेगा नहीं ना। पेट के लिए तो कमाना पड़ रहा है। लेकिन सवेरे से मेहनत करते हो, थोड़ा बहुत सवेरे से तो मिलता होगा। मैं जाऊंगा 4 बजे, तब होगा 300 रुपये दिहाड़ी मेरा। और 300 रुपये को किसको किसको दोगे? मैं ले जाऊंगा, बेचूंगा, बेच के जाके खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, रोटी खा के घर में जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, सोऊंगा, फिर नाइट में प्लांट में काम है, प्लांट में आऊँगा, प्लांट में काम करता हूँ मैं। अच्छा। और जैसे इस प्रकार के काम करने में कैसा लगता है तुमको? वो गंदा लगता है, क्या करूँ, अब करना तो पड़ेगा। अब मजबूरी है इंसान का, मजबूरी तो। दिल्ली शहर में क्या करेंगे, कबाड़ा ही चुनना पड़ेगा, और क्या करेंगे। कितना पढ़े लिखे? पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा, बचपन से यही प्रकार के काम में आप नहीं, बचपन से गांव में था 3-4 महीने, फिर मम्मी पापा ने दर्जी का काम दिया था, दर्जी काम किया है, बहुत कुछ काम किया है। अभी आए हैं मजबूरी में, काम फाम नहीं है गांव में, बहुत तकलीफ है, इसलिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर काम करते समय तुमको किसी भी प्रकार का डर तो महसूस नहीं होता है? डर नहीं, बाहरी डर नहीं, वो डर पर कुछ महसूस नहीं होता। कोई लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं? नहीं, लड़ाई झगड़ा कौन करेगा यहाँ, कोई नहीं करेगा। जाओ अपना पीनो, बेचो, बस बिंदास रहो। लेकिन इस प्रकार के जैसे काम को सोचते हुए कभी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार आपके लिए कुछ करे? हाँ, जो बेरोजगार है करना चाहिए सरकार को करना चाहिए। जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ काम देना चाहिए उन लोग को, फिर तो उन लोग काम करेगा। नहीं तो क्या करेगा, इसी में बीनेगा और क्या करेगा। ज़िंदगी तो ऐसा ही भी ख़राब है और वैसा ही भी ख़राब है। Juvenile Justice Act or the Child Labor Act or even the Constitution of India would require that the rights of the rag pickers all children are protected. But there is a gap between the provisions and the actual implementation. And that gap arises because of various things, including the inefficiency of the government and the fact that there are not enough resources with the state
to provide a decent life, a livelihood, a living to the children or to their parents, because actually what you want is a situation where the parents of these children can take care of them. That situation does not obtain, so therefore these children are forced to look after themselves and provide for themselves and their families. Really speaking, it is the life of the rag pickers cannot be improved till the life of their families is improved, till their economic security of their families is assured. So this is true for all child labor. Essentially, it requires that the families are able to take care of the children and the children don't have to go out and work. मजदूरी करना पड़ता है, क्या करूँ, पेट तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से पेट बढ़ेगा, कैसे भी तो कमा के खाना है। अच्छा काम मिलेगा तो अच्छा काम करूँगा, गंदे काम क्यों करूँगा, बदबू है, मच्छी मंडी का, मुर्गा मंडी का बदबू काम है, मजबूरी करना पड़ता है। खत्ते में कितना रिस्क का काम है, गाड़ी वाला कितने आदमी मर जाता है, खत्ते में कम से कम कितना 1000 आदमी मर रहा है। हाँ, सबको दबा दिया खत्ते के नीचे, जो मर जाता है उसको दबा देता। तो कैसे ऐसे दुर्घटना होते रहते हैं? हाँ। और किस किस प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता है? हाँ, बहुत रिस्क है। कम क्या चीज़ का रिस्क है? गाड़ी अब बेध्यान हो जाता है, ध्यान में काम करता है आदमी, बेध्यान हो जाता है तो गाड़ी आगे पीछे से ठोक देता है। ऐसा बहुत आदमी का हादसा, बहुत आदमी यहाँ हिंदुस्तानी एक है जो ज़बरदस्ती दादागिरी दिखा के कबाड़ा लेता है, और जो कबाड़ी 50 रुपये बिक्री होता है, जो प्लास्टिक होता है 60 रुपये का बिक्री, उसको लेता 13 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, ज़बरदस्ती दादागिरी दिखा के। अगर ज़्यादा पुलिस केस करोगे चाहे कुछ करोगे फिर दादागिरी आगे दिखाएगा, रात को मारेगा, पीटेगा, परेशान करेगा। यहाँ कम से कम सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पकड़ के रखो। बहुत झुग्गी में चलो, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान में है भाई। अब कौन क्या करता है, हमसे क्या मतलब, हम अपना पेट चलाने के लिए हमको तो कमाना पड़ेगा। Though they do not have most respected or a dignified job, they still have the pride of not being a beggar or a thief. They go everywhere collecting the waste from the garbage dumping ground. These rag pickers usually goes to work from morning to evening, alone or in a group, walking kilometers of distance, carrying huge sacks on their shoulders as they search for scraps. Every hour of the day, they have to walk loads to earn more, and walking place to places in the hot heat of summer, exposing to rain or wind, just because they are scared of losing money for daily needs. इसमें कुछ खुशी नहीं है, इसमें पेट भात का खाना है, बस हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पढ़ाई लिखाई करके ये काम करना पड़ रहा है भाई, जब पैसे रहेगा तभी तो सरकार में जाने के लिए घूस चाहिए। राजनीति के अंदर जुड़े हुए इन बच्चों को जो देखा जाए तो काफ़ी बुरे हालात में देखने में हमें अपने आप को भी शर्म आती है कि किस हालात से बच्चे जूझ रहे हैं। सरकार इनके लिए इतने मुहिम चला रही है, फिर भी वो सुविधा इन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में ही कुछ करप्ट लोग से मुहिम को वहीं का वहीं नष्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ हम कर सके, अपनी तरफ से भी कर सके। इनकी इस अर्थव्यवस्था को देखकर शर्म, हमें खुद को शर्म आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई राजनेता ही हो, हम आम आदमी को भी शर्म आनी चाहिए कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें ताकि ये इस कंडीशन से ना गुजरे। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि जो हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर सोच सकते हैं, भविष्य में जाके कुछ बन सकते हैं, हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, आज वो कूड़ा गिन रहे हैं क्योंकि उस तरीके की सुविधा अप्रूवल नहीं करवाई जा रही, प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही उस तरीके की सुविधा। तो मेरा बचपन से ये गेम रहा है कि मैं बड़ा होकर शायद मैं कुछ बन जाऊं, तो मैं बच्चों के लिए अनाथालय खोलने चाहता हूं, जिससे मैं अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना पीना और अच्छे अर्थव्यवस्था में रख सकूं। ₹6000 रुपये देते हैं। एक दिन में कभी कभी खर्च हो जाता 100-200, कभी
कुछ भी नहीं होता है। अगर सेहत सही नहीं है तो ड्यूटी भी नहीं जाते हम। नहीं जाते हैं। ये मेरी बदकिस्मती है, ये मेरे भारत का बदकिस्मती है कि जो आज मेरे बच्चे इस लायक हो नहीं बन सके कि जो कोई अधिकारी बन सके। बोलना चाहूँगा, पहले बच्चे का पेट भरने का व्यवस्था कीजिएगा कि उसका स्कूल का व्यवस्था कीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे के पेट में अगर यदि अनाज होगा तो स्कूल जाना जरूर पसंद करेगा, जब पेट में अनाज नहीं होगा तो स्कूल जाना तो क्या, वो घर में भी रहना नहीं पसंद करेगा। उनके लिए क्या संदेश देना देश चाहते के हैं जो बच्चे कूड़ा देश के उठाते बच्चे हैं? के लिए मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा, जो मेरे बच्चे का अगर यदि घर में पेट भरा, रोटी से पेट भरा रहेगा तो बच्चे कहीं भी लेके कमा खा सकते हैं। जब पेट में भूख रहेगी तो कहीं नहीं कमा खा सकते हैं। विद्यालय जाते हैं कहीं कोई लेता नहीं है जी, क्या करें। लोग कहते हैं झुग्गी वाले आदमी हो तुम, चलो ऑटो यहाँ से फीस लाओ, जमा करो पहले 20,000 रुपए, जब तुम्हारे बच्चे को लिया जाएगा। यहाँ पर एक जो कहाँ गाजीपुर में एक सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी नहीं लेते हैं। सरकारी स्कूल में बोल देते हैं फुल है, यहाँ एडमिशन फुल हो चुके हैं, अब बच्चे को लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। निखिल, आपको दुख नहीं लगता है कि आपके दुख लगता है। अब भाई साहब क्या करें, बच्चे अनुसार हो रहे हैं, जब क्या करेंगे। मजदूरी भी इतनी कमा पाते हैं जो कुछ करें। कभी लगती है कभी नहीं लगती। बता सकते हैं जो आपको कोई परेशान करता? परेशान जी बाबू ये करते हैं, जब हम चले आते हैं वहाँ से, हम वहाँ आते हैं बोलते 100-200 रुपये कमाते हो, बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं इधर आ, ऐसे करके बुला लेते हैं हमको, और फिर बोलते दे 100 रुपये दे हमको, उधार दे, नहीं नगद दे रहा उधार दे, जबरदस्ती करके 100 उधर कट जाते हैं जी। तो ये सब काम कहाँ होता है? काम इधर ही चलता है जी, इतने मुँह खोल के डॉक्टर पैसे इतने दो जी। अब हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे जी, कपड़े बेचेंगे अपने। सरकारी में जाम है तो सरकारी में कोई लापरवाही हो जाती है जी। बच्चे इनके मारे पड़े रहे, ये छोटे छोटे बच्चे इनके पास